Hello again. So today we are going to learn about Earth, its relation with Sun and its relation with Moon. So we have Earth, right? So if we talk about internally, so let me draw the diagram so that you understand. So internally it has three parts or three components, right? एक आपके पास क्या है, internally आपके पास you have core, and core has interior as well as exterior, right? Similarly, the middle part are the large portion of Earth internal structure, that is mantle, right? Now mantle can be lower or it can be upper. Mantle, it is said that it is around 68% of the Earth mass. ये तकरीबन 68% काउंट करते हैं, ठीक है? And then we come to know the crust, which is the uppermost part of the Earth, where most of the Earth activities, internal activities happen, and it is also inner crust and it has outer crust. So that was about internal structure of the Earth, and then we know physicality, structure, shape of the Earth. That is what we have. As you can see, you might have observed it, which is what? Which is oblate. क्या है? Oblate spheroid, not perfectly spherical. Okay, and we say it is oblate spheroid. क्या है ये? मतलब आपका अर्थ जो है ना, इक्वेटर में ये थोड़ा सा बल्ज करते हैं, उभर आते हैं, एंड स्प्लिट एंड इट फूल्स. जब आपके हाथ में कोई बाल हो और आप इसको कंप्रेस करते हो तो ये मतलब दोनों अपर लोअर साइड पे कंप्रेस होते हैं, और एंड रिजल्टेंटली इसकी जो सेंटर है या इक्वेटर कह ले, ठीक है, वो थोड़ा सा बल्ज करते हैं. सो दैट इज not spherical, but we generally call it spherical shape, ठीक है, but that is exactly or precisely oblate spheroid, जो कि इस तरह होता है, ठीक है. If we talk about the composition of Earth, ठीक है, so that is chemically we say the Earth is made up of around or more than 100 elements. इसमें constitute करते हैं naturally, and physically Earth is made up of you know that well 70% हमारे पास क्या है? वाटर है, and around 30% क्या है? ये लैंड है, ठीक है. तो इसको हम जियोग्राफिकली हाइड्रो स्पेयर भी कहते हैं, और बाकी लैंड में आपके पास जो है ना लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर. ये चीज़ें फिर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्थ. नाउ कमिंग टू रिलेशंस. क्या है हमारे पास? वी रिलेशंस है, एंड रिलेशंस ऑफ अर्थ, सन एंड मून are three types.
कितने हैं? 3 टाइप हैं। एक तो रिलेशन जो है ना हमारे पास ये बनते हैं कि जो कि मतलब प्रोमिनेंट हैं, उसके बगैर काम ही नहीं होता। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ let me draw it again. Suppose this is your earth and this is the sun, right? ठीक है, अब ये जो है ना सन एंड अर्थ रिलेशन, एक तो ये है, ठीक है। जितना मतलब खेल ले कि सपोज यू रिसीव sun radiation here, and with respect to it we also get sun radiation here as well. Now the amount of sun radiation received on earth, it varies because of the shape of the earth and the distance between earth and sun, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। What is land composed of? What are you talking about? You can say that what is land composed of, ठीक है। तो इसमें जो है ना अगर हम जनरली बात करें दिलावर खान, ठीक है, अर्थ की सॉरी लैंड की अगर हम बात करें जनरली, ठीक है, तो पहले जो है ना जनरली it is made up of rock, ठीक है, and rock can be your minerals, ठीक है, and non minerals material, ठीक है, ये जनरल बात है। and I have also told you at the start earlier that internally we have core, the mantle and the crust। तो ज़्यादातर चीज़ें जो है ना हम तो अंदर नहीं जा सकते कि मेंटल को देखे और फिर जो है ना कोर को देखे, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस है, डिवाइस है जो हम विटनेस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो है ना रॉक की जो हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये इसमें जो है ना मिनरल्स है, वी कैन यूटिलाइज देम फॉर और बेनिफिट्स, और नॉन मिनरल्स है, ठीक है, रॉक्स के टाइप है आगे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर हम ऊपर बात करें लैंड मास की बात करें, ठीक है, जियोग्राफिकली, तो इसमें हमारे पास जो है ना फिर इकोसिस्टम की बात आती है। इकोसिस्टम जो कि बहुत है, इकोसिस्टम कैन बी एटमॉस्फेयर which is largely related to environmental science. Then we will discuss that in respect to topic, okay, don't worry about that. We have hydrosphere, ठीक है, और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हम इसके साथ हमारा कंसर्न है। देन कम्स व्हाट एल्स, वी हैव बायोस्फीयर जहाँ बायोलॉजी होती है, मतलब बायोटिक कंपोनेंट या लाइफ है, एंड अदर वन इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में फिर आपकी स्टेनोस्फीयर भी आती है, ठीक है, जो कि नीचे है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लिथोस्फीयर स्टेनोस्फीयर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना फिर जियोग्राफी से रिलेटेड हैं। आई होप यू गेट द आइडिया, ठीक है ना यहाँ तक, ओके। अगर ठीक है तो लिख के, तो हम बात कर रहे थे सन अर्थ रिलेशन के, ठीक है, वो क्या है, वो एंगल की बात करते हैं यहाँ। इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू जियोग्राफी, ठीक है, but I am just telling you for the sake of understanding, because if you understand these situations you can get a lot of things, a lot of concept in one go, ठीक है। So we say that angle of sun, ठीक है, यहाँ जो है ना एंगल के बाद में करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। एंगल ऑफ सन मैं लिख देता हूँ, ठीक है, so that you get it. Angle of sun's rays या radiation या light, कुछ भी कह लें, that forms it E में अर्थ
E या अर्थ surface. So the angle of sun rays that forms at earth surface directly proportional to what? दो चीजें हैं, ये डिफाइन करते हैं. एक है intensity of insulation और सन रेज या रेडिएशन है, ठीक है. इंसुलेशन जो है ना ये एपेक्ट रेडिएशन है. And this angle of sun rays that forms at Earth's surface is inversely proportional to what? To the spread of light. ये दो चीजें याद रखो. ये कंसेप्ट जो है ना ये आपकी सारी चीजें क्लियर कर देंगी अगर इसकी समझ आ गई. आपकी जो अर्थ की मोमेंट है इसके फिर आगे जाके इम्पैक्ट से ठीक है, सारी चीज़ें ये क्लियर करते हैं. क्योंकि यहाँ जो है ना लाइट है सन की और वो किस तरह इन्फ्लुएंस करती है आपको. सो दैट्स ऑल अबाउट दैट. ठीक है ना. Yes, we can say that lithosphere is the Earth's surface, but that is not precise thing. ठीक है. crust जो है ना ये जो हार्ड पार्ट है जिस पे हम एक्टिविटीज करते हैं वो है जनरल. ठीक है. लिथोस्फीयर जो है ना इसमें अगर हम एक्टिविटीज के हिसाब से बात करें तो ये अलग चीज़ है. और फिर जो है ना द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर इसका स्टीनोस्फीयर. ठीक है, जिसमें एक पोर्शन जो है ना माउंटेन की भी आती है विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज. ठीक है. अच्छा, तो क्या है यहाँ यू गेट व्हाट? यू गेट इंटरनल एंगल. यू आल्सो गेट हियर इंटरनल एंगल. ठीक है. यहाँ भी इंटरनल एंगल आता है, यहाँ भी. एंड आई होप इट इज विजिबल टू यू. इफ इट इज सो राइट. समझ रहे हो ना. ठीक है. यहाँ भी एंगल है. अगर ये वाला एंगल जो कि डायरेक्टली इक्वेटर है, ठीक है, और ये जो है ना ऊपर या नीचे पोल्स की तरफ है, नॉर्थ पोल या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. या पोल्स के टुवर्ड्स जो है ना जो इंसुलेशन है वो क्या है, उसकी एंगल यहाँ जो है ना कम है. एंगल कम है तो इसी वजह से इसकी इम्पैक्ट्स कम है. यहाँ बात कर चुके एंगल ऑफ सन रेज दैट फॉर्म्स ऑन अर्थ सरफेस. ठीक है. यहाँ सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन. यहाँ जो मतलब एंगल बड़ा है तो इसकी इंसुलेशन या इसकी इफेक्ट ज्यादा होंगे क्योंकि एंगल बड़ा है. इट इज अराउंड अबाउट 90 डिग्री बनाते हैं, लेकिन ये 90 से कम है. ठीक है. तो इसी वजह से यहाँ जो है ना जब एंगल कम है तो स्प्रेड ज्यादा है. मतलब यहाँ इस एरिया को अगर आप मेजर करो और इस एरिया को तो ये ज्यादा बनता है, स्प्रेड ऑफ लाइट ज्यादा है. और इट इज बिकॉज द शेप ऑफ द अर्थ विच इज राउंड इन जनरल टर्म्स. गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? कुछ तो देखो ना. ठीक है. और ये चीज जो है ना आगे जाके आपकी जो ग्लोबल फिनोमिनाज है सच एज ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल प्रेशर, ग्लोबल ह्यूमिडिटी, ग्लोबल विंड सिस्टम वगैरह को जो कि वेदर वेरिएबल्स एंड वेरिएशन है ये आपको वहाँ काम करेंगे. ठीक है. सो फिर आती है रिलेशन जो है ना, एक आपकी क्या है, एक आपकी सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है. ठीक है. सन एंड अर्थ रिलेशनशिप है. और दूसरा जो है ना जो कि तीसरा हमने वो तो याद कर दिया जनरली, वो सन, अर्थ एंड मून है. ठीक है. यह जो है ना सन अर्थ की बात करी सो वी कम
टू नो मोमेंट्स आते हैं। मोमेंट्स जो है ना आर कैटेगराइज इनटू रोटेशन, राइट, and the other one is revolution, and you know it very well. रोटेशन जो आपकी जो एक्सियल मोमेंट है, अपनी जो एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन जिसको हम कहते हैं, जो अटैक्स जो है ना अराउंड 24 और लेते हैं, उसको हम रोटेशन या स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है, या एक्सियल मोमेंट भी कहते हैं, जो कि ये जो है ना आप ईस्ट वर्ड मोमेंट मूव करते हैं इन 24 आवर्स। ये इसी मोमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। और इसके जो है ना फिर हमारे पास क्या आती है, डे नाइट। डे नाइट रिलेशन वेरिएशन होती है, जो कि मोस्टली चीज़ों को मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गई। अगर फोटोसिंथेसिस मगर अगर ये इस रोटेशन ना होती तो ये डे नाइट ना होती, अगर डे नाइट ना होती तो फोटोसिंथेसिस ना होती, अगर फोटोसिंथेसिस ना होती तो हमारी जो मतलब प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स या ह्यूमंस की जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब होती। अगर ये डिस्टर्ब होती तो हमारा जो अर्थ का जो नेचुरल सिस्टम वो काम करता है, जब वो काम नहीं करता तो हम नहीं होते। तो ये ठीक है ना यहाँ तक? Is it clear? Okay. Revolution है so that the orbital moment of Earth that moves around the Sun, and it takes approximately 65.24 days a year. ठीक है, और ये आपकी क्या इम्पेक्ट करती है? आपको सीजन देते हैं। It gives you season. Now season are of two kinds. इसको एक हम जो है ना टेक्निकली कहते हैं इक्वेनिक्स. You might have heard these names, and the other one is solstice. Right? Equinox are further classified into, यहाँ मैंने वो लगाया है, किधर है वो, किधर चला गया ये, क्लियर है पिक्चर? इक्वेनिक्स दो टाइप के हैं। यू कैन सी हियर, एक इक्वेनिक्स जो है ना आपका मार्च में आता है, ठीक है, जो कि स्प्रिंग इक्वेनिक्स है, 2021 मार्च पे यूजुअली होता है। एंड सिमिलरली द अपोजिट ऑफ दैट इक्वेनिक्स वी हैव सितंबर इक्वेनिक्स दैट मोस्टली हैपन, बट हैपन नॉट मोस्टली, परफेक्टली 22 या 23 सितंबर को होते हैं, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू दिस इक्वेनिक्सिस वी हैव सोलेस्टिस, ठीक है। तो सोलेस्टिस भी हमारे पास जो है ना दो तरह के है, दिसंबर सोलेस्टिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और इसी तरह एक और सोलेस्टिस है विच अकर्स जून 22 जून को, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हो गई। ये भी मतलब स्प्रिंग इक्वेनिक्स हो गई। I repeat it to you, and then you have fall equinox, सोलेस्टिस भी जो मतलब दिसंबर का है, ठीक है। दिसंबर जिसको हम क्या कहते हैं, जून सोलेस्टिस कहते हैं, और दूसरी को हम विंटर, ठीक है। तो ये विंटर हो गया सोलेस्टिस, और दूसरा जो है ना क्या है, समर सोलेस्टिस, राइट। तो ये चीजें जो है ना होती है। अब ये क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड। कुछ जानते हैं आप इसके बारे में? अगर आप जानते हैं तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है।
क्या चीज़ है, क्यों होती है ये? इट इज़ बिकॉज वन एंड द ओनली रीज़न द अर्थ इज टिल्ट। किधर है? हाँ देखो ना, द अर्थ इज टिल्ट it 23.5 degree either south or either north. So you can imagine this is your earth and when it moves to here, so the situation change। ठीक है, और ये आपका सन है। अब ये मतलब अपनी जो है ना, जो कि एक्लिप्टिक प्लेन है, ये वाला आपका क्या है? ये वाला आपका एक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं, द प्लेन ऑन विच अर्थ मूव्स एंड सस्टेन इट्स पोजीशन थ्रू आउट दिस सर्कल। ठीक है, दैट इज वन थिंग। नाउ दिस अर्थ इज टिल्टेड 23.5 degree south or north away from the its ecliptic plane. It is perpendicular to this plane। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से जो है ना, सन की जो इंसुलेशन है वो रिलेटिव है। अगर हम इसके बात करें तो ये डायरेक्टली मतलब टुवर्ड्स इक्वेटर नहीं है, इसी वजह से ये भी डायरेक्टली टुवर्ड्स इक्वेटर नहीं है, बल्कि या तो मतलब ज़्यादातर नॉर्थ पोल की तरफ है। यहाँ जो है ना नॉर्थ पोल जो है ना अवे है, यहाँ जो है ना टुवर्ड्स है। सिमिलरली इफ यू कंपेयर इक्वेनिक्स की बात करी, और इक्वेनिक्स जो है ना नाम से ज़ाहिर है, जो आपको मतलब क्या है, आपको थ्रू आउट डे जो है ना 24 आवर की बात करें, 12 आवर्स की, आपको थ्रू आउट डे सेम डे लाइट देती है, या इन अदर वर्ड्स यू गेट डे लाइट एंड डार्कनेस सिमिलर। ठीक है, एक ही जैसे जो है ना आपके डार्कनेस या लाइट डे या नाइट होते हैं। ठीक है, 24 आवर्स डार्कनेस एंड 24 आवर्स लाइट, दैट इज कॉल्ड इक्वेनिक्स। सो दैट्स ऑल अबाउट इक्वेनिक्सिस। ठीक है, एंड सोलेस्टिस। ये ठीक है, ठीक हो गया है ना? चलो सुनते रहो, मुझे क्या, थोड़ा सा आप वो भी नहीं कर सकती कि जवाब क्लियर है या नहीं क्लियर है, बाकी तो छोड़ो। अच्छा, now another relationship that we can concern with, that is sun, earth and moon। ठीक है, ये है। अब ये जब रिलेशन आती है तो हमारे ज़हन में एक नाम आता है, इसको हम कहते हैं इक्लिप्स। नाउ इक्लिप्स आर टू टाइप्स, वन इज सोलर इक्लिप्स एज यू नो, ठीक है, एंड द अदर वन इज लूनर इक्लिप्स। ये तो आप जानते हैं इक्लिप्स क्यों होती है, कहाँ होती है, किस तरह होती है, तो ये आप जानो, यू मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये मतलब सोलर इक्लिप्स क्या है, जब आपके सन और अर्थ के बीच में लूना मून मिडल में आ जाए। ठीक है, मून मिडल में आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, सोलर इक्लिप्स। सपोज दिस इज योर सन, दिस इज योर अर्थ। ठीक है, और ये आपके क्या हो गई, ये आपकी मून हो गई। तो इस तरह कुछ रिलेशनशिप बनते हैं, तो ये सोलर इक्लिप्स हो गया। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड वी हैव लूनर इक्लिप्स। इन दिस केस व्हेन अर्थ, आई मीन सन, अर्थ एंड मून परफेक्टली अलाइन, जब ये तीनों परफेक्टली अलाइन होती है, इन विच अर्थ लाइज इन द मिडल। ठीक है, और दोनों के बीच में, तो एक रिलेशन यहाँ बनती है, ये आपका लूनर इक्लिप्स बनता है। ठीक हो गया, मैंने इसलिए मतलब परपेंडिकुलर कर दिया बिकॉज इट इज जनरल टॉपिक एंड यू अंडरस्टैंड इट।
If you don't know, so you can write in the comment box, then I will explain to you in detail. फिर सोलर इक्लिप्स की कुछ टाइप्स भी है, जैसे टोटल है, ठीक है, यू है पार्शियल इक्लिप्स जो कि रेयरली अकर होती है, सॉरी टोटल और पार्शियल जो है ना मोस्टली जो है ना लार्जली है, और एनुलर टाइप सिमिलरली यू हैव हाइब्रिड, वेरी वेरी रेयर टाइप ऑफ दिस सोलर इक्लिप्स, ठीक है. सो मोर अबाउट एज यू नो दैट दिस सोलर इक्लिप्स लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स क्यों होती है, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है. और इट अकर्स इट एवरी 18 मंथ्स, और ये क्यों हर 18 माह के बाद क्यों होती है, तो ऊपर हमने बात की जो कि थोड़ा सा लॉजिकल है. And you must understand that logic behind the occurrence of solar eclipse at every 18 months, right? One thing more about this lunar eclipse, that it impacts what? Tidal bulge. Tidal bulge, yes, tidal bulge on earth. जो tidal bulge होती है ना अर्थ में, ठीक है, when it comes to the movement of ocean and other water bodies, ठीक है, तो ये सन की तीनों की जो अलाइनमेंट होती है, ये वाले ये यहाँ की जो वाटर बॉडीज है इसके मूवमेंट को इम्पैक्ट करते हैं. So that's all about today's session. We have discussed so far the earth, its internal and external structure, its geometry, shape, then composition, then sun-earth relation, and then the relation with respect to sun in earth and its moment, rotation, revolution, ठीक है, और फिर इसके impacts है हमारे पास, and then we come to the relation between sun, earth and moon, जो कि इक्लिप्स है, 2 टाइप्स है, और बाकी आप जानते हो. That's all. See you then, because I don't see you here.